Now we will move toward the next part of the cell and its structure, that is parts of a cell. किसी भी या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, मेनली उसके कितने पार्ट्स होंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो मेनली प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव फॉलोइंग parts. The cell is surrounded by a delicate membrane that is called cell membrane. As you see in the photograph, it gives the shape to the cell and it protects the cell from the outer side, and it also keep intact all the inner part from inside. It also helps in the movement of material from outside and inside. In plant cell, the cell is again supported by a thick layer that is called cell wall. It is made up of cellulose. Now move toward the inner side. Next one is the cytoplasm. Jelly-like substances present between cell membrane and nucleus is called cytoplasm. It contains other components of the cell like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, vacuoles, endoplasmic reticulum, so on. जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के कंपोनेंट डिसॉल्व हैं, उनको हम सबको एक साथ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। और ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस होता है। नेक्स्ट टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द whole soul controlling unit of the cell. It is found in the center of the cell, but sometimes in marginal position also. Cell is spherical body centrally placed in the cell. It is also surrounded by a delicate membrane called nuclear membrane. It has a small spherical body inside called nucleolus and many thread-like structure called chromosome. ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जीन्स होते हैं, और यही जीन्स किसी भी इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स के जैसा ही बच्चा दिखता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वैक्यूल. Vacuoles are blank looking structure in the cytoplasm. ये खाली. Vacuoles are large in size in plant and smaller in animal cell. It helps in the maintaining the shape and size of the cell as well as maintain the osmoregulation of the cell. Osmoregulation of the cell. As you see in the diagram, next one is the plastid or chloroplast. It is present in only plant cell. It contains chlorophyll, which is green in color and help in the process of photosynthesis. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में है और ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे प्लांट खाना बना लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ वी विल मूव
our next unit, that is called structure and function of the animal and plant cell and differences between plant and animal cell. Now you can see in the diagram comparison between plant and animal cell. You can easily identify the parts that are present in animal cell and which are not present in the plant cell एंड वाइस वर्सा. कौन सी चीज़ें प्लांट सेल में हैं, कौन से एनिमल में नहीं हैं, कौन से एनिमल में है प्लांट सेल में नहीं है. दीज विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. नाउ हियर इज द स्लाइड शोइंग द कंपेरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में. प्लास्टिड आर ऑल्सो एब्सेंट, चूँकि प्लांट एनिमल्स को खाना बनाना नहीं है, दे डिपेंड अपॉन अदर, इसलिए उसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं. सेंट्रोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट. अब सेंट्रोसोम्स क्या होता है, यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. एब्सेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल. एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, बहुत बड़ी वैक्यूल एब्सेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. जो एनिमल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है. एंड लास्टली lysosomes are the suicidal bag present in the animal cell only. Now move to the plant cell. Cell wall is present. Cell wall plant cell में मौजूद होता है, present होता है. Plastids are also present that impart the green color of the cell. Centrosomes are absent. चूँकि ये absent है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रोसोम, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल. आपने देखा एनिमल सेल में एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल होती है जो कि सेंट्रल के आसपास होती है और न्यूक्लियस को पुश करके साइड में कर देती है. कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज स्टार्स. तो प्लांट सेल में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो स्टार्स के रूप में होता है. एंड लाइसोसोम्स आर यूजुअली एब्सेंट इन द प्लांट सेल. तो इस तरह there are 6 main differences between the animal and plant cell up to class 8 level. तो आपको इतना ही आपको डायग्राम बनाकर ये प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करके टेबुलर फॉर्म में नोट करके लिखना है. नाउ यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल थ्रू द टेबल. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट बोथ में. सेल वॉल प्रेजेंट प्लांट सेल, एब्सेंट एनिमल सेल. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म दोनों में है. प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल. वैक्यूल्स प्रेजेंट बट स्मॉलर साइज इन एनिमल एंड लार्जर साइज इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर साइज इन एनिमल सेल. So that is all about the differences between the plant cell and animal cell. Thank you for today.